Types of tumor है. Another different types of tumor. So different type of tumor. We'll have two different type of tumor. Number one, benign tumor. Benign tumor, the tumor which is confined to only one place. मतलब ये confined हो गया, restrict हो गया. If it is restrict to a particular place, then only it is called as benign tumor. And number two, malignant tumor. When the cancer spread due to what a metastasis. What is the previous class? Metastasis is the property when the cancer is still being invasive to tissue to reach the different part of your body through the circulation of blood. Spread of cancer is called as what? Malignancy. Or sorry, metastasis, which gives rise to the formation of the tumor called as malignant tumor. The spread of the tumor, cancer, due to metastasis is called as malignant tumor. Malignant tumor बहुत ही थोड़ा सीरियस होता है, बहुत ज्यादा डेंजरियस होता है, क्योंकि अगर ट्यूमर एक जगह पे सेंट्रलाइज है, then it is being possible to treat that very effectively. If that tumor is being spread throughout the body, it is very difficult. ठीक है, बहुत difficult हो जाता है उसको treat करना. लेकिन अगर ये restricted है किसी एक place में, तो उसको आप लोग easily treat कर सकते हैं. And what are the treatment for the cancer? ना surgery, radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy. And हमेशा याद रखना maximum cases में जो cancer का treatment होता है, not a single treatment, a mass of treatment at a time, ताकि वो ज़्यादा effective हो. We are coming to the next topic, and that is what? Na carcinogen. Carcinogen actually the cancer causing agent. And cancer causing agent are none other than, we can say, a type of mutagen. है कि नहीं? जो म्यूटेशन कराता है उसको म्यूटाजेन बोलते हैं. And cancer mutagen के वजह से ही होता है. So ultimately we can say the mutagen which is responsible for the conversion of normal cell into cancerous cell are called as what? Na carcinogen. The carcinogens are actually the cancer causing agent, a type of mutagen जो कि mutation कराता है. A normal cell contain cellular oncogenes. Cellular oncogene और इसको क्या बोलते हैं? सी ऑन्कोजीन, जिसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं ना, प्रोटो ऑन्कोजीन. सेलुलर ऑन्कोजीन को ऑलवेज बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन. तो सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन is present in normal cell.
तो प्रोटोनगोजेन इनएक्टिव है कि एक्टिव हो गया? इनएक्टिव हो गया. Now that inactive protoncogen which will activate, दूसरा दे दीजिए बेटर होगा, which will activate into oncogene in presence of carcinogen to form cancerous cell. और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैंसरस सेल का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो हाईली कंट्रोल्ड होता है इन केस ऑफ नॉर्मल सेल, इट हैड बीन ब्रेक डाउन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द नॉर्मल सेल्स व्हिच इज हाईली कंट्रोल्ड बट कैंसर सेल्स बिकम अनकंट्रोल्ड. ठीक है. नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ कैंसरस टाइप्स में नंबर 1 आते हैं फिजिकल कैंसर. फिजिकल कैंसर, फिजिकल कैंसरोजेन के अंदर हम लोग 2 एग्जांपल देंगे. आयोनाइजिंग रेडिएशन and non-ionizing radiation. Ionizing radiation like your X-rays and gamma rays. Whereas non-ionizing radiation like your UV rays. याद रखिए ये क्वेश्चंस में हमेशा आता है कि ionizing like your X-ray, gamma rays and non-ionizing like your UV rays. उल्टा कर देता है क्वेश्चन में, रिवर्स कर देगा. तो ये हो गया फिजिकल कैंसरोजेन. सेकंड इज chemical carcinogen. Certain chemicals are there which actually responsible for the making the normal cell into cancerous are called as chemical carcinogen. कुछ example हम दे सकते हैं like your soot, glucose, skin and lungs cancer. Coal tar, glucose, the skin and lungs cancer. Cigarette smoke. That will cause the lungs cancer. Cadmium oxide. Will cause prostate cancer. Aflatoxin. That will cause the liver cancer. Mustard gas will cause the lungs cancer. Nickel and chromium that will create the lungs cancer. Asbestos. Asbestos that will also create the lungs cancer. Diethyl stilbestrol. इसको हम लोग DES बोलते हैं. Diethyl stilbestrol that will cause the vaginal cancer. हम लोग diethyl stilbestrol के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं. It is also called as stilbestrol. Simply हम इसको भी बोलते हैं. Actually, this is being used in case of dairy farm, given to the cows and buffaloes
to increase the productivity of milk. मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इसका कैंसरस प्रॉपर्टी है, धीरे धीरे टोटली बैंड हो गया, अभी यूज नहीं होता है। ठीक है, and the last one is vinyl chloride. That causes the liver cancer. So these are the different examples which comes under the chemical carcinogen. We are coming to the biological carcinogen. Number 3, biological carcinogen. बहुत सारा कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, बहुत सारा कैंसर होगा। हाँ होगा, पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। जब हम लोग टोबैको एडिक्शन पढ़ेंगे तब हम बता देंगे क्या क्या कैंसर होगा। तो वी आर कमिंग टू द बायोलॉजिकल कैंसर carcinogen. बायोलॉजिकल कैंसर मतलब क्या है? ठीक है, बायोलॉजी मतलब क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग? मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसरोजन व्हिच इज लिविंग एंड दिस इज नन अदर देन व्हाट, दैट वायरस। हियर द वायरस एक्ट एज ए कैंसरोजन। अब सोचिए, उस वायरस को हम लोग बोलेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस। The virus which contains oncogene है कि नहीं? अगर किसी वायरस के पास पहले से ही ऑन्कोजेन होगा, then उस वायरस को आप क्या बोलेंगे? ऑन्कोजेनिक वायरस। And if this virus will attack you, then वायरस के पास तो ऑलरेडी ऑन्कोजेन है, समझे कि नहीं? डायरेक्टली वो ऑन्कोजेन आपकी बॉडी में सेल में एंट्री कर जाएगा एंड आपका सेल क्या हो जाएगा ना, कैंसरस। यहाँ पे कन्वर्सन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटोनकोजेन चेंज होकर ऑन्कोजेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट इट इज डायरेक्टली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और एंटरिंग ऑफ व्हाट ना, ऑन्कोजेन थ्रू वायरस। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैंसर। समझ में आया? सो ऑन्कोजेनिक वायरस विथ ऑन्कोजेन कॉज द कैंसर, then this carcinogen is called as biological carcinogen. So this is all about the different source of the carcinogen. Now we are coming to the different types of cancer. Complete है? जल्दी करिए, complete. We are coming to the types of cancer. सर लास्ट वाले का एग्जांपल हम लोग HIV दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं HIV। और भी बहुत सारे हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस that also cause the cervical cancer, HPV। and हम लोग एड्स पढ़े थे, HIV cause what ना, Kaposi sarcoma पढ़े थे ना, बिल्कुल दे सकते हैं। तो we are coming to the types of cancer. नंबर 1 आते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर के अंदर। फर्स्ट इज कैर्सिनोमा। बच्चे मैक्सिमम केसेस में एग्जाम हॉल में टेंशन के मारे कैर्सिनोमा कैर्सिनोजेन में गलत करके आ जाते हैं। कैर्सिनोमा क्या है? टाइप ऑफ कैंसर। कैर्सिनोजेन क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। अलग अलग चीजें पूरा। तो कैर्सिनोमा कैंसर which occurs in the organs of epithelial origin. अब आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े हैं, दूसरे अलग चैप्टर में पढ़े कि आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन एपिथेलियल ऑरिजिन है। Those all organs which are derivative of epithelial tissue are comes under which cancer? Carcinoma. समझे? एंड आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा यही टिश्यू तो प्रेजेंट है, एंड दैट इज व्हाई
The carcinoma almost forms 85% of cancer comes under which category? The carcinoma. 85%. तो मेजोरिटी ऑफ कैंसर, आप कोई भी एग्जांपल दीजिए, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारे के सारे, सर्वाइकल कैंसर, सब आ जाएगा इसी के अंदर। मतलब क्या है, जितने भी ऑर्गन का नाम मैंने लिखा, ये सारे के सारे किस ओरिजिन है? एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन। स्क्रीन उठा दीजिए। नहीं है? नहीं, उसको मत करो। पकड़ के बैठेगा। छोड़ दे, मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता है, लेकिन खट्टा भी होता है। ये नंबर 2। क्या हुआ? Cancer of mesodermal origin, then it is called as sarcoma. And इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा? ना बोन कैंसर, बोन मैरो कैंसर, मसल्स कैंसर, लिम्फ नोड कैंसर। वैसे पूछता है लिम्फ नोड कैंसर इज अ लिम्फोमा, ट्रू फॉल्स? क्या होगा? फॉल्स, because lymph node is mesodermal origin and mesodermal origin में जो भी कैंसर आ जाएगा वो सब किस में आ जाएगा? सार्कोमा। क्वेश्चन रहता है। नंबर 3, ल्यूकेमिया, popularly called as what? The blood cancer. एंड हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि कैंसर होने से होता क्या है एक्चुअली? The cells become matured or immature. कैंसर सेल होते क्या है? Immature, undifferentiated cancerous cells. पढ़े है ना? Number becomes increases drastically to form the tumor. तो ब्लड में कौन सा सेल का नंबर इंक्रीज करेगा? ना जिसमें प्रोटोनकोजिन चेंज होकर ऑन्कोजिन में कन्वर्ट होगा, मतलब जिसमें न्यूक्लियस होगा। सिंपल है भाई। कौन है? WBC। तो आप तो खुश होना चाहिए कि भाई WBC इंक्रीज कर रहा है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं भाई, वो सब इमैच्योर्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड WBC है, खाली नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, लॉस ही लॉस है बॉडी में।
ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा WBC का काउंट। RBC के साथ WBC का कंपटीशन होगा कि नहीं? फॉर व्हाट? न्यूट्रिएंट। उसके वजह से RBC का धीरे धीरे डेथ होता जाएगा। And that's the reason behind what? Leukemia or blood cancer, the unnecessary, immature WBC count increases, but RBC count decreases. इसलिए RBC count decrease करता है, but immature, undifferentiated WBC count क्या होता है? Increase होता है. That gives rise to what? Leukemia. And leukemia में secondary symptom क्या है? ना anemia भी होगा, क्योंकि RBC count decrease कर रहे हैं तो anemia होगा कि नहीं? Here, immature and undifferentiated WBC count or leukocyte count increases, whereas RBC count decreases. Leads anemia. क्लियर है? अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, what is lymphoma, what is adenoma, what is melanoma, what is glioma. The lymphoma a cancer in lymphatic tissue. The cancer of gland is called as what? Adenoma. The cancer of melanocyte cells of skin. And glioma, the cancer of glial cells. याद है? Glial cells और न्यूरोग्लिया. Glial cells और न्यूरोग्लिया में कैंसर होगा तो ग्लायोमा. इसीलिए मैंने आपको बताया अभी कि lymph node cancer is what? Is a sarcoma or lymphoma. Sarcoma. ठीक है? So we are coming to the next. Detection and diagnosis. डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में लोग फर्स्ट आते हैं. नंबर 1, हिस्टोपैथोलॉजिकल और बायोप्सी टेस्ट. हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट और बायोप्सी टेस्ट यहाँ पे होगा क्या? Sample of a suspected tissue. A sample of suspected tissue is to be studied in lab. मतलब उस सस्पेक्टेड टिश्यू को हम लैब कंडीशन में कल्चर करके उसके बारे में स्टडी करेंगे वेदर द सेल इज नॉर्मल सेल और कैंसरस. समझे कि नहीं? एंड इट इज मोस्टली एप्लीकेबल टू एक्सटर्नल कैंसर और की इंटरनल कैंसर. अब देखिए आपको एक टिश्यू का सैंपल चाहिए.
तो टिश्यू का सैंपल आप कहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे? यस, इसीलिए खाली रट्टा मारने से कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनेगा। थिंक कि भाई हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑपरेशन करके सैंपल तो नहीं लेंगे ना। एक्सटर्नली कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, बकल कैविटी कैंसर, थ्रोट कैंसर, vaginal cancer, clear है? All the cancer which are mostly related to external cancer are concerned at the test called as histopathological test or biopsy test. Number 2, is invasive technique or radiography. रेडियोग्राफी है कि रेडियोथेरेपी है? आप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आपको पूछेगा रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी, इनमें से डायग्नोसिस कौन है, ट्रीटमेंट कौन है? रेडियोग्राफी इज द डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी क्या है, ट्रीटमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, रेडिएशन। रेडियोग्राफी इन्वेसिव टेक्निक मैंने लिख दिया है पहले से, मतलब इट इज रिलेटेड टू इंटरनल बॉडी कैंसर की एक्सटर्नल बॉडी कैंसर? यस, रिलेटेड टू इंटरनल बॉडी कैंसर। इसमें हम लोग यूज करेंगे दो प्रोसेस, एक तो सीटी स्कैन, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। Scanning is called as what? CT scan, computed tomography scanning. CT scan में हम लोग यूज क्या करते हैं ना, यूजिंग ऑफ एक्सरे। अभी हम लोग कुछ ही देर पहले पढ़े थे कि एक्सरे इज आयोनाइजिंग रेडिएशन की नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग। तो CT scan is harmful to the body or harmless to the body? Harmful। ठीक है। अब सेकंड है MRI, फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें यूज क्या होता है, प्रोटॉन्स और H प्लस आयन यूज करता है एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो बताइए हार्मफुल होगा कि हार्मलेस? ये क्या होगा, हार्मलेस होगा। अरे नॉन आयोनाइजिंग दिख रहा है, H प्लस आयन कहाँ आपके बॉडी को हार्म करता है? यही सब तो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को छोड़ के खाली रट्टे मारने के पीछे भागते रहते हो। So H plus and non-ionizing radiations we are using here in the MRI, and ये दोनों में कॉमन क्या है, 3D इमेज फॉर्म। 3D इमेज फॉर्म होगा। मोस्ट एक्यूरेट इमेज किन में ना, MRI। एक तो ये बहुत ही मोस्ट एक्यूरेट इमेज फॉर्म होगा 3D का। सेकेंड ये हार्मलेस है, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट व्हाट ना कन्वीनियंट एंड मोस्ट अप्रूव्ड, यही किया जाता है MRI। ये इन्वेसिव टेक्निक हो गया, क्लियर है। नंबर 3, काउंटिंग ऑफ WBC किसके लिए होगा, और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के लिए WBC काउंट हम लोग कर सकते हैं, नंबर 3। नंबर 4, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। भाई अल्टीमेटली कैंसर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच जीन, प्रोटोनकोजिन की ऑन्कोजिन? प्रोटोनकोजिन तो सब में होता है, कैंसर किसके लिए होता है, ऑन्कोजिन। मॉलिक्यूलर मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूल, DNA RNA प्रोटीन को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे रिसर्च करेंगे, क्या चीज को आइडेंटिफाई करेंगे ना, वेदर द ऑन्कोजिन इज प्रेजेंट इन द सेल। एंड हम लोग जानते हैं कि कैंसर अगर प्रिलिमिनरी स्टेज में है तो ऑन्कोजिन का नंबर और क्वांटिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, कम। उसको PCR के थ्रू बढ़ा सकते हैं।
मतलब अर्ली डायग्नोसिस कैन बी आल्सो पॉसिबल. ठीक है. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ specific oncogene, detection of specific oncogene in suspected tissue or cell. And number 5, antibody detection. यहाँ पे भी समझ लीजिए भाई, देखिए अगर कैंसर अगर वायरस की वजह से हुआ है, ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह से अगर कैंसर हुआ है, then in that case we can say the specific antibody also to be found by the body, as because it is cancer due to virus. तो वायरस अगर आपके बॉडी में एंट्री किया है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी तो प्रेजेंट होना चाहिए. अगर आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक वायरस, then it is also confirm the what? No, that is cancer. So here detection of antibody specific for specific virus means oncogenic virus. The detection of antibody specific for specific oncogenic virus. This is the method of diagnosis in case of cancer. अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में हम लोग डिटेक्शन करते हैं. Now we are coming to the treatment. We are coming to the last topic of this cancer treatment. Treatment is by means of different way. जैसे कि फर्स्ट आते हैं सर्जरी. सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर. सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर. एंड ये सर्जरी किस केस में पॉसिबल होगा? बेनाइन के केस में कि मैलिग्नेंसी के केस में? बेनाइन के केस में ये पॉसिबल होगा बिकॉज मैलिग्नेंसी तो स्प्रेड हो जाएगा तो कितना सर्जरी करेंगे. तो सर्जरी और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर. और ट्यूमर को साइंटिफिकली मैंने क्या बोला था? नियोप्लाज्म. इसलिए नियोप्लास्टिक वर्ड आएगा. नियोप्लास्टिक. नंबर 2, रेडियोथेरापी. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? रेडिएशन यूज करेंगे. तो रेडिएशन यूज करेंगे और रेडियोथेरापी. तो the tumor cells are exposed to the lethal gamma radiation. Tumor cells are exposed to lethal gamma radiation. Gamma radiation मतलब आयनाइजिंग हुआ कि नहीं? To kill it by taking proper care of normal cells. यहाँ पे twisted question. Why the cancerous cells are being died? Because of radiation. As
cancerous cells are immature and undifferentiated. As cancerous cells are immature and undifferentiated, so are sensitive to radiation. So ये वजह नॉर्मल सेल का डेथ कम होगा अगर आप रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं, तो भाई जो अफेक्टेड पार्ट है उसके साथ नॉर्मल सेल भी तो अफेक्टेड होगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट ही लिख दिया है बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल सेल, ठीक, सो दैट वी नो कि गामा रेडिएशन जब एक्सपोज हो गए अफेक्टेड बॉडी पार्ट में, तो कैंसर सेल का ज्यादा डेथ होगा, नॉर्मल सेल का कम डेथ होगा. Why the cancerous cells are being died? Because of the exposure to the radiations or radiotherapy, because they are immature and undifferentiated. तो आपके बॉडी में और एक है जो immature है and undifferentiated है, apart from the cancerous cell, and it is stem cell. तो अगर आप रेडियोथेरेपी करेंगे, स्टेम सेल का भी डेथ होगा, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, immature and differentiated. इसीलिए मैंने लिखा है by taking proper care of organs. समझे? आप एग्जांपल दे सकते हैं? आयोडीन 131. ये आयोडीन 131 एक रेडिएशन, एक गामा रेडिएशन आयोडीन का, यूज फॉर विच कैंसर? थायराइड कैंसर. Next, number 3. Chemotherapy. Coming to the chemotherapy. यहाँ पे हम लोग यूज क्या करेंगे? केमिकल्स यूज करेंगे. Certain chemicals. Certain chemical. and ये केमिकल क्या होता है? टॉक्सिक केमिकल. Certain chemicals used to kill tumors. एंड इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? याद करिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर में विनब्लास्टिन याद आया, विंसिस्ट्रीन याद आया कि नहीं? So vinblastine and vincistrin, it is recovered from, उस प्लांट का नाम क्या है जिससे ये रिकवर्ड होता है? विंसिस्ट्रीन एंड विनब्लास्टिन. बताइए, बोलिए ना. भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? और यही सब तो क्वेश्चन है, और बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में थोड़ा सा. हाँ, पहली बात तो ये विंसिस्ट्रीन एंड विनब्लास्टिन बीइंग यूज्ड फॉर ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट. Mostly these are used for the leukemia treatment. Second, from common weed. एंड उस कॉमन वीड का नाम क्या है? दो है, एक है कैथारंथस रूजियस, याद आया? कैथारंथस रूजियस. सेकंड है विनका रूजियस.
These are the two common weed from which we extract the vinblastine and vincristine to be used for the leukemia treatment especially. And इसका साइड इफेक्ट क्या है? क्योंकि ये टॉक्सिक है, तो आपके नॉर्मल बॉडी सेल को भी अफेक्ट करेगा कि नहीं? व्हाट आर द साइड इफेक्ट? आप लोग जानते हैं, हेयर लॉस होता है, पढ़े कि नहीं? हेयर लॉस होगा, और क्या होगा बोलिए? केमोथेरेपी ट्रीटमेंट में और क्या होता है? एनीमिया होगा। भाई अगर आप WBC को किल करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया, तो यू नीड टू किल द WBC। तो WBC का किल होगा तो RBC का भी तो डेथ हो जाएगा, बिकॉज दे आल्सो बीइंग इन कांटेक्ट विद दिस योर व्हाट केमोथेरेपी ड्रग्स। याद आया? सो हेयर लॉस, एनीमिया, these are the most common symptom for the immunotherapy chemotherapy. Next we are coming to the next and the last, that is immunotherapy number 4. Immunotherapy, it is treated with biological response modifier. याद कर लीजिए, इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन। याद आया? तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर और अल्फा इंटरफेरॉन में होगा क्या? इट इज टू बी ट्रीटेड विद द अल्फा इंटरफेरॉन। तो इसमें होगा क्या? पहली बात तो ये है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एंड हम लोग पढ़े थे कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से टी हेल्प किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, दे विल increase the killing ability for the cancerous cells or tumor cells, right? याद आया? तो ये बायोलॉजिकली रेस्पॉन्स मॉडिफायर है, इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, साइटोटॉक्सिक एंड किलर टी सेल विल किल द ट्यूमर और दैट इज अनवांटेड सेल्स। सेकेंडली ये INF है, INF it is otherwise called as what? The antiviral protein। याद आया? ये क्या करेगा? वायरस का रेप्लिकेशन को स्लो डाउन कर देगा कि नहीं? पढ़े थे ना? तो those viruses which gives rise to the cancer will also become slow down by means of this slow down the replication rate. These are the different type of treatment. We are coming to the last, एक word है जिसका नाम है telomerase. Telomerase enzyme. Telomerase enzyme add telomere a nucleotide sequence, right? Telomere क्या है? The sequence of nucleotide is called as what? Telomere. So that add telomeres to the dash end of DNA. So this particular enzyme will add the telomeric sequence to the 3' end of DNA, and ultimately by means of this what? Like prevent the DNA damaging, DNA modification, and also prevent the chromosomal fusion. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये टेलोमेरेज एंजाइम। दो डीएनए को, दो क्रोमोसोम को प्रिवेंट करता है फ्यूजन से, नंबर 1। नंबर 2, they also protect the DNA, prevent the DNA from DNA damaging and DNA modification. अगर DNA modification नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा? अरे समझेगी नहीं? And that is why the cancerous cells and stem cells दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, and what is that? Very matured and undifferentiated. Why? Now in both cases the telomerase activity is highest.
In cancerous cell and stem cell, the telomerase enzyme activity is highest. इसीलिए कैंसरस सेल एंड स्टेम सेल इमैच्योर्ड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। एंड कैंसरस। अभी मैं लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव डिस्कस्ड, which treatment do not involve the normal cell, मतलब कौन सा ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट उसी में होगा जिसमें नॉर्मल सेल अफेक्टेड होगा, अरे है कि नहीं? नॉर्मल सेल अफेक्टेड किसमें नहीं होगा? इम्यूनोथेरेपी में नॉर्मल सेल अफेक्टेड होगा क्या? नो नॉर्मल सेल अफेक्टेड। That is the reason why no side effect. ये है क्वेश्चन, बाकी आप देख लीजिए। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, तीनों में नॉर्मल सेल टारगेटेड होते हैं कि नहीं, अफेक्टेड होता है कि नहीं, तो साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर दिस टॉपिक कैंसर।